We can create 5 elastic IP. Why we need VPC? To secure, isolate, and control network environment. और उसके बाद component of VPC, Internet Gateway CIDR, NACL और Network ACL. Types of VPC, two types, default and custom. Default, when we create AWS, default VPC is created in each region, or custom VPC when we it's created manually. और सर वो क्या बोलते हैं, हाँ, डिफॉल्ट VPC हैज नेटवर्क गेटवे और कस्टम VPC डोंट हैव नेटवर्क गेटवे. इंटरनेट गेटवे. हाँ भाई, सॉरी, इंटरनेट गेटवे. बस दैट्स ऑल. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट चलते हैं हम Thank लोग you. किसके पास? आयुष के पास चलते हैं. आयुष, क्या करना है? देना है या फिर फाइन देना है? सर कोई और टॉपिक पे दे दे सर. हाँ दो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ से. सर हम कंटिन्यू करें सर? तुम दोगे तो? ओके सर. Okay sir, good morning sir, and good morning everybody. Today's my topic is Amazon AWS S3 bucket. S3 stand from simple storage services. It is an object level storage. Any object can be stored here and can be accessing from anywhere. Documents, file, pictures, videos, database can be example of the S3 objects. The storage is used for internet and we cannot installing OS S3. Accessing and we are configure our S3 bucket, modify, management and accessing. And second topic is sir our S3 buckets. It's classes sir. Class not is the object can be identified. It's service endpoint reason, and second one is our bucket name, object key, and object versioning sir. And last point is sir our last point is my sir. It's S3 classes sir. S3 object classes are Glacier, Deep, Archie, S3 Standard, S3 One Zone IA, or Intelligence or Theory. That's it, sir. Thank you. ओके, थैंक यू अजय. Most welcome, sir. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आयुष के पास. Good morning sir, good morning everyone. Today is my topic is. तुम्हारा वीडियो ऑन करना पड़ेगा ना. वीडियो ऑन है सर? नहीं है ऑन. किसी को दिख रहा है क्या आयुष? नहीं सर. No sir. वीडियो तो ऑन है सर. नहीं ऑन है. ऑफ करो, वापस ऑफ करो, ऑफ करो. अब तुम फाइन हमको तो दिख रहा है सर, हमको दिख रहा है सर. अच्छा, बाकी से पूछो किसी को दिख रहा है क्या? चलो, हमको नहीं दिख रहा है. नहीं नहीं. No sir. नहीं दिख रहा है किसी को. तुम किसी को नहीं दिख रहे हो, तुम मिस्टर इंडिया हो गए. अब अरे अब दिख रहा है सर? नो, नहीं. सीधे भी जाएंगे. क्या हो गया? कोई बात नहीं, 10 रुपए फाइन दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है.
जब सर नेक्स्ट टॉपिक पे दे रहे, कोई टॉपिक दे रहे। तुम्हारा देख कैसे वीडियो बिना ऑन किए हुए कैसे दोगे? अब पता नहीं फोन में क्या हो गया सर, अब मेरे फोन में दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा उसी फोन से 10 रुपये ट्रांसफर कर दो। ठीक है? आयुष एक बार रीजॉइन करके देखो। हमारे पास उतना टाइम नहीं है अजय बाबू, यस सर। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। 10 रुपीज भेज दो, फाइन भेज दो। प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में कंप्लीट करना है। ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। कहाँ गया आयुष? किधर है? चला गया? उसका लिख लो 10 रुपीज फाइन का। हाँ, प्रीवियस क्लास में यही तो अब दिख रहा है। अब तुम दिख रहे हो। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Today my topic is network. What is network? Collections of device connected with each other through some media, wired or wireless for data communication. It's called network. What is networking? Logically enabling the device communicate with each other is called networking. What is protocol? Protocol are predefined agreement between the communicating parties for successful communication is called protocol. In the basis of geographical coverage area network are 5 types: LAN, local area network, metropolitan area network, CAN, campus area network, WAN, wide area network. रुक जाओ, हेलो रुक जाओ। चलो क्वेश्चन पूछते हैं नेटवर्क से। What is MAC address? What is MAC address? MAC stands for media media access control, and MAC are 48 bit. It is a logical address, physical address. ये लॉजिकल या फिजिकल दोनों बोल दिए तुम? लॉजिकल। मैक एड्रेस लॉजिकल है। वाह, शाबाश। और सॉरी सर, फिजिकल है सर। एंड काट दो ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पूछिए रितु जी। सर हम हाँ पूछो। सर हम पूछेंगे ना। हाँ सर डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। बोलो डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। उसको बाहर दिखा रहा है। क्या ऑनलाइन वाला नहीं पूछ सकता सर। नेटवर्क से ही तो पूछ रहा है। ट्रांसमिशन सर, टीसीपी stands for transmission control protocol, and it is 4 type. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन पूछना चाहता है? सर पूछे? नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। What is NIC card? NIC is a network interface card. ये नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम आता है, एक पीसी को दूसरे पीसी से। क्वेश्चन करो। Who manages IPv4 and IPv6 addresses? पर आपकी आवाज नहीं आ रही। Who manages IPv4 and IPv6 addresses? नहीं आप सुन लिया होगा।
कौन मैनेज करता है IPv4 IPv6? सर याद नहीं आ रहा सर। सर याद आया सर, IPv4 सर, INA एन INA था ना फुल फॉर्म बोल रहे हैं। सर, फुल फॉर्म याद नहीं है सर। ठीक है। बच गया सर, कोई बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग। क्वेश्चन है अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबके लिए? Yes. Yes, sir. तो हम लोग प्रीवियस डेज कुछ बातें किए थे S3 के बारे में। S3 वर्जनिंग के बारे में बात हुआ था। S3 बकेट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात किए थे और उसका प्रैक्टिकल भी आई थिंक किए थे। और हम लोग बात किए थे मल्टी पार्ट अपलोड के बारे में और कॉपी के बारे में। कॉपी S3 डिलीट की ऑब्जेक्ट, होता है। वो सब प्रैक्टिकल है सर। और बात किए थे S3 स्टोरेज MFA delete. हाँ S3 स्टोरेज। स्टोरेज क्लास में। हाँ, S3 स्टोरेज क्लास के बारे में। तो S3 बकेट आप डिफरेंट क्लास का यूज कर सकते हो। डिफरेंट क्लासेस हैव डिफरेंट चार्जेस। ओके, जैसे आप लोग लिस्ट किए थे S3 स्टैंडर्ड था, ग्लेशियर था, S3 ग्लेशियर था, ग्लेशियर डीप आर्काइव था, S3 IA था। IA का फुल फॉर्म है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। S3 वन जोन IA था और इंटेलिजेंट टायरिंग था। सो दीज आर द डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ S3 क्लासेस। अब इस क्लासेस को बारे में हम लोगों को जानना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं S3 स्टैंडर्ड के बारे में। S3 स्टैंडर्ड जो नॉर्मल S3 बकेट है, जब भी मैं S3 बकेट क्रिएट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो S3 स्टैंडर्ड ही बनता है। हाँ, मैं वहाँ से अलग क्लास चूज कर सकता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट। लेकिन आप अगर कुछ चेंजेस नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जो बनेगा वो S3 स्टैंडर्ड ही बनेगा आपका S3 बकेट। तो ये सारे चार्जेस S3 बकेट का टाइप है। तो ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट्स है। एवरीवन शुड राइट डाउन द पॉइंट्स फर्स्ट, ओके, देन वी कैन डिस्कस इट। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में।
गया डन। সিএইচে ক্লাসটা কবে শুরু করবে? মার্চে তো হয়ে গেল। হ্যাঁ এবার এক্সাম শেষ হলো এইচএস কালকে, কালকে তো শেষ হলো, कल खत्म हुआ नॉट भी एग्जाम नहीं कंप्लीट है जी একদিন আগেই শেষ হয়েছে। 18 तारीख परसों दिन শেষ হয়েছে। নেক্সট উইক থেকে বলতে পারছি না, আমার 9:30-তে ক্লাস আছে, 11:30-তে ক্লাস আছে, আমার স্লট খালি আছে 2 থেকে 4। এবার 2 থেকে 4 কারা কারা করতে পারবে পারবে না, তারপরে আমি ব্যস্ত। এই জন্যই আমি করি এইসব বিপদ আপদ চলে আসে। 5 বছর তো একটা করছি। কত করেছি, মহা মুশকিল হয়ে গেল। ও তো ফোন করেছিল, আমি ওকে বলে দিলাম যে দেখো এই ব্যাপার আছে, এইচএস এক্সাম আছে, ব্যাপার আছে, এক্সাম দিয়ে ফিরে তারপরে স্টার্ট করবো। বললো ঠিক আছে, তো কিছু বলেনি আমাকে, বললো ঠিক আছে স্যার। আমাকে তো তুমি করছো বারবার না, স্যারকে বলুন ক্লাসটা দেখুন একটু স্টার্ট করে দিন। স্টার্ট হয়ে যাবে, স্টার্ট করে দেবো, ঠিক start। তুমি এদের ক্লাসটা নিয়ে নাও না, AWS টা এই টাইমে শুরু করে দাও, AWS টাতে পড়িয়ে দাও, তুমি তো খালি আছে এটা। আছি কয়েকদিন আছে। কয়েকদিন আছে মানে কদিন আছে? बहुत क्लास, अभी बहुत क्लास बचे सर, बोल रहे सर अगले महीने बट एग्जाम पड़ जाएगा तुम लोगों का। तुम लोग एग्जाम होगा मई में। नहीं बिकॉज मेरा ये जो मंथली होता है ना पूरा कंप्लीट हो चुका है मंथली भी, इसलिए हम सोच रहे थे ठीक है मेरा तो एग्जाम पड़ जाना चाहिए। तुम 356 को या 345 को? 349 और 349 को, इसीलिए तुम्हारा खत्म। 356 से खत्म नहीं हुआ। अभी भी वो तो एक बट नहीं 70-78 का बचा हुआ है तुम लोग के बैच में। 56 का भी এপ্রিলে স্টার্ট হয়েছিল, এপ্রিলের 16-17 স্টার্ট হয়েছিল। मई में खत्म होगा एग्जाम से। वैसे लिखा है वैसे सर फर्स्ट पॉइंट पढ़ो কি লেখা আছে? It offers high durability, availability and best performance. हाँ, मतलब क्या है इसका? सर ड्यूरेबिलिटी एबिलिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है। पढ़ के समझ में आ गया सर। हाँ सर समझाना है? পাইথন আছে তো, हाँ কে দেখবে? পাইথন, কোথায়? আরে এই তো রূপক বসে আছে। রূপক স্যার ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। हाँ फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबके लिए? यस सर Sets offer high availability, best performance and durability because ये तुम्हारा काफी कॉस्टलीस्ट सर्विस है स्त्री का कॉस्टलीस्ट सर्विस यही है स्त्री स्टैंडर्ड। क्यों है? बिकॉज ये मेरे को काफी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? ये एक ऑब्जेक्ट का 3 कॉपी बना के रखता है।
एक ऑब्जेक्ट का तीन कॉपी। आप कोई डेटा रखोगे उसका 3 कॉपी ऑटोमेटिक को बना लेगा डिफरेंट डेटा सेंटर। इससे कोई डेटा सेंटर फेल भी हो गया हो या कोई डिजास्टर भी आ गया हो, आपका डेटा मिल जाएगा। क्लियर? इट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज यूज्ड टू अपलोड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। तो इसलिए स्टैंडर्ड है तो वो ऑब्जेक्ट बेस्ड ही होगा। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज करता है, ऑब्जेक्ट को ही स्टोर कर देता है पूरे का पूरा, ब्लॉक लेवल का स्टोरेज यहाँ पर नहीं होता। सो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ड्यूरेबिलिटी बता रहा है यहाँ पे 100% कोई नहीं बोलेगा, तो 99.99% दिखा रहा है ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ, इतना टिकाऊ डेटा है ये स्टोरेज कि आप डेटा अगर रखोगे तो डेटा आपको वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या चांसेस है, कितना चांसेस है मिलने का? 99.99%। ठीक है। डिजाइन फॉर 99%, 99.99% एबिलिटी पर ईयर। কি বুঝলে? প্রতি বছর 99.99% एबिलिटी देय। एबिलिटी मतलब क्या होता है? एबिलिटी मतलब होता है आपका डेटा अवेलेबल हो आपके लिए। वैसे उसको डिजाइन किया गया। हाँ, तो इस तरह से इस स्टोरेज को डिजाइन किया गया है कि साल में आपको पूरा साल में एवरी ईयर एवरी मिनट, उस साल का हर एक मिनट हर एक सेकंड में डेटा आपके लिए अवेलेबल होगा। कितना चांसेस कितना है? 99.99% चांसेस है। रात में 12 बजे भी एक्सेस करोगे तो एक्सेस होगा। भोर में 3 बजे भी जब सोने के जाते हो, तुम सोने कितने बजे जाते हो? 3 बजे ना? না 10টা। 10টায় ঘুমিয়ে পড়ো? পুরো ঝুট বলছো। অসম্ভব। তাড়াতাড়ি ঘুমাই আমি। মুখে এটা বলছে তুমি ঘুমাও না রাতে। 10টায় ডিনার করি না, 10টায় ডিনার করি 11টায় ঘুমিয়ে পড়ি। না 10টায় ডিনার করি 11টায় 10টায় লাঞ্চ করো। দুপুরে ঘুমাই তো। ডিনার তো সেই একটা সময়। না আমি 10টায় এমন করি। Okay, it supports SSL for data in transit and encryption for the data remaining. So data security के लिए ये SSL को यूज करता है। SSL is a protocol which provide us the encryption. SSL का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL जैसे हम लोग किसी वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल है google.com, yahoo.com, facebook.com, ये सब SSL इनेबल है, जिससे डेटा इंक्रिप्शन होता है। वो आउटगोइंग और इनकमिंग विद एसएसएल रहता है। तो डेटा इंक्रिप्शन होता है। इन ट्रांजिट मतलब डेटा जब मूव करता है रास्ते में, बीच में डेटा इंक्रिप्टेड होता है। कोई अगर उसको एक्सेस भी कर लेगा तो डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, इसके अंदर क्या है। क्लियर? लास्ट वन इज वन ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम 5 GB। S3 स्टैंडर्ड में एक ऑब्जेक्ट का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 GB। मतलब एक फाइल का साइज, सिंगल फाइल का बता रहे हैं यहाँ पे। एक वन ऑब्जेक्ट मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट का साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 GB। 5 GB से बड़ा फाइल यहाँ पे आप नहीं रख सकते। क्लियर फॉर एवरीवन? S3 स्टैंडर्ड समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट जाने से पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे? सफल कर लेंगे। सफलिंग जानते हो ना? सफलिंग जानो ना? 5 मिनट में वो ही तो बता दे कभी भी। हाँ। हम ताश खेलते हो? उनो खेलते हैं एवरीडे। हाँ सर, मिक्स मैच कर देंगे, मतलब मिक्स मैच कर देंगे। मिक्स एंड मैच। तो सफल करेंगे हम लोग। जो बैठे अरेंजमेंट जो बैठने का है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? सफल करने वाले। ओके? एक दिन वहाँ पे भेज देंगे यार। सफल कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग काउंट करेंगे 1 2। क्या काउंट करेंगे? 1 2। 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद 3 नहीं आएगा, फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है? जिसका 1 आएगा वो इधर बैठेगा, जिसका 2 आएगा वो इधर बैठेगा। क्लियर? काउंट करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। काउंट करो भाई। 1 2 1। अब
अपना नंबर याद रखना है, जिसका 1 आया वो उधर चले जाए, जिसका 2 आया वो इधर आए, तो क्या बोलते हैं सफल। वन इधर बैठेगा, 2 इधर बैठेगा। है ना मजेदार। चेंज हो रहे तुम्ही आभार खणी बसे गेले का तुम्ही तो आभारी खणी चले मुद्दे पास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज Amazon S3 IA। IA मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, इसका क्या फीचर है, इस क्लास को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। There is a different class, different types of S3 bucket. Okay, so ये आप लोग नोट कर लो क्या क्या इसमें है फीचर्स। So everyone should write down the features of S3 IA, because अगर कोई पूछे तो आंसर कर पाओ कि S3 IA क्या होता है, उसमें क्या फीचर्स मिलता है। तुम लोगों का एग्जाम था ना, ये तुम लोगों का बैच था। हाँ सर, इन लोग का तो था, रोहित कल तुम लोग का एग्जाम था ना। पास करो सर। हैं? आराम से ठीक है, पास करो। आगे का पास कर लो, ये पास करो। हैं? टेक्निकल में कितना है कंप्यूटर वाला? 70 100 क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ अभी तो 100 मार्क्स का है। हम लोग तो पर निकल गए अथी से, लकीली निकल गए। नहीं सर, स्टार्टिंग में वाइवा क्लियर हो गया था। अभी का एग्जाम का प्रोसेस चेंज हो गया, अभी पैरामीटर वाइज एग्जाम हो गया। एवरी पैरामीटर तो वाइवा भी कोई और लेगा? दिया तुम्हारे वाइवा आए थे क्या? कि नहीं बलराम सर को ऑनलाइन? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्वेश्चन बता बोल ले, याद नहीं है। ये जेटली में कोई मेंशन नहीं होगा ऐसा कुछ। हाँ नहीं, सिलेबस के अंदर वाला ही क्वेश्चन था। मतलब क्या मतलब? बहुत डिटेल में जाके हाँ, अब पूछेगा रीप का टाइमर कितना है, कितना सेकंड का टाइमर पूछा है, गया, अपडेट पूछा टाइमर गया, कितना है, तो पूछा क्या गया। ये क्या क्वेश्चन है? ये तो इजी क्वेश्चन है। हाँ 30 सेकंड ना। हाँ 30 सेकेंड हाँ। नहीं, चारों टाइमर बोल 180 240। तो उसका ट्रिगर्ड नहीं होता है ना, ट्रिगर्ड ओएस पे जब नॉक भी करेगा। লেখা গেছে? Done? S3IA cheaper than standard, है ना? Why it is cheaper? Because यहाँ पे infrequent access है, ज़्यादा frequently आप access नहीं कर रहे डेटा, तभी आप S3IA में रखते हो डेटा।
डेटा स्टोरेज के लिए बढ़िया है, बट कंटिन्यूअस ऑल टाइम एक्सेस करने के लिए नहीं है ये स्टोरेज। अगर कंटिन्यू एक्सेस करते हो, ऑल टाइम एक्सेस कर रहे हो, ऑल टाइम डेटा रख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो हमेशा के लिए, हमेशा एवरी आवर, तो ये स्टोरेज आपके लिए नहीं है। तो आपको कहाँ पे आना चाहिए? स्टैंडर्ड। तो ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, कभी कभी, कभी कदार, महीने में एक बार, एक हफ्ते में एक बार डेटा एक्सेस करना पड़ा, बट स्टोरेज के लिए है, लेकिन स्टोर द डेटा है। यहाँ पे भी ड्यूरेबिलिटी है डेटा का, रख दिए डेटा तो डेटा आपका खो नहीं जाएगा। कितने चांसेस है? 99.9999999 नौकर 9। बट यहाँ पे जो कम है वो है एबिलिटी पर ईयर। एबिलिटी पर ईयर में आप देखो यहाँ पे 99.9 है, 90। प्रीवियस वाले में 99 था, थोड़ा सा कम है, बिकॉज डेटा अवेलेबल हमेशा होना चाहिए, यहाँ पे उसके लिए है ही नहीं, बिकॉज ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, कभी कभी आपको एक्सेस करना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा तो है इम्पोर्टेंट, बट हमेशा एक्सेस करना पड़ेगा, ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए, वो जरूरी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे रखा था डेटा को इनफ्रीक्वेंट, है ना। इट इज़ ए बैक विद द Amazon S3 SLA फॉर अवेलेबिलिटी। तो इसका बैकअप भी क्रिएट होता है S3 SLA में, इसका भी बैकअप बनता है। मैं अगर चाहूँ तो रेप्लिका बना सकता हूँ डेटा का, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे रेप्लिका कैसे बनाते हैं। तो ये था S3 आए। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है? रैपिड एक्सेस का मतलब क्या? रैपिड एक्सेस, रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। रैपिड मतलब फर्स्ट एक्सेस। Now next class is a intelligent tiring. So इसमें क्या फीचर्स है ये भी आप लोग नोट कर लो। So S3 intelligent tiring. আস্থানে একটা প্রোগ্রাম দিয়ে বলেছে যে ক্রিয়েটিভ ঠিক আছে, এটার আউটপুট এটা চাইছে তো 23 দিলে 32 প্রিন্ট, যে নাম্বারটা দেবে ইউজার ইনপুট করবে সেটা অপোজিট করে প্রিন্ট হবে। নাম্বার দিয়েছে মিশন থেকে লাস্ট অবধি প্রিন্ট করে দিয়েছে। কোশ্চেনটা কি আছে? রিভার্স মানে বলে তো রিভার্স অর্ডারে প্রিন্ট করতে, অর্ডার বলে অর্ডার বলেনি, রিভার্স নাম্বার বলে 19 29 28 27 স্যার একটু চলুন স্যার, সাবমিশন বন্ধ পুরো মেশিন বন্ধ হয়ে গেছিল সব ফুট করে। পাওয়ারের জন্য পাওয়ার বন্ধ। হ্যাঁ পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেছিল, কি করবো? সব প্র্যাকটিক্যাল তো করেছিল, অর্ধেক গেছে, এমনি উড়ে গেছে। ঠিক আছে, ওখান থেকেই চলবে, যেখানে প্র্যাকটিক্যালটা করছিল বলবে খুলতে, ওখান থেকে খুলবে, কোনো হবে অসুবিধা নেই। ঠিক আছে। কি প্র্যাকটিক্যাল করছিল? সব যা প্র্যাকটিক্যাল তো ভিএমএ করছিল, অসুবিধা কি আছে? ভিএমএ তো পজ হয়ে যায়, না বন্ধ হয়। স্যার চলে গেছে সব, কিসে প্র্যাকটিক্যালটা করছিল? প্যাকেট ট্রেসার, ভিএমওয়্যার। ভিএমএর মেশিন পজ হয়ে যায়, প্যাকেট ট্রেসারের সুন্দর সব চলে গেছে। প্যাকেট ট্রেসারে রিসেন্টে যাবে, রিসেন্টে গিয়ে খুলবে, চলে আসবে। রিসেন্ট कब हुआ ऑफ? हम लोग तो ऑफ नहीं हुआ।
কি হলো? আপনাকে যেতেই হবে, কাউকে বলে থাকলে সব ভুলে গেছে। तुम लिख दो मेरा भी, हम तो तुमको पेन दिए हैं, तुम लिख दो। सबसे पहली बात तो लिखने का मन नहीं कर रहा। फोटो खींच के रख दो, घर में लिखेंगे। घर में तो पढ़ाई करते ही नहीं है सब। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा था रोहित? हाँ पता है, तुम्हारा भी तो है फिर क्वेश्चन बोलो ना। रोहित। সুবিধা অজ্ঞান আবার কি আছে? এটা কোনো কথা? 7-এর পরে 8 হবে, 5 কোথা থেকে চলে এলো? রূপম তো বললো যে কোশ্চেন সব ঠিকই করেছে, আমি পেরেছি। मुझे स्क्रॉल करके तो नीचे का भी लिख ले। क्यों? फिर तो लिखनी पड़ेगा, हो जाए तो लिख लेते हैं। बेटर है। ए, करके आ तो। चल बस। ए, क्वेश्चन बोलो ना। याद नहीं सच। तब भी जो आंसर किया वो तो याद रहेगा वो ना। तो रहेगा ना यार। ভাই এতটাও তোর মেমোরি খারাপ না। ये झूठ बोल रहा है। কার দিক तो बोल सीधा सीधा नहीं बताना है तो लोग को। না ভাই আমার 5 জনের मैंने 1 2 4 क्वेश्चन भी नहीं याद होगा। এর এটা ফার্স্টে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট করে আমি একসেপ্ট করে দিচ্ছি হাই ও এই ভাই আমার হাই ये डांस बात कर मैंने कि लड़की चले आते कैसे वो चलिए याद और एक কথাটা আমি পরে স্ক্রল করতে আমার লিখি হ্যাঁ বেস্ট ফ্রেন্ড একবার বলি ওকে হ্যাঁ তোর বেস্ট ফ্রেন্ড। হ্যালো हम पार्टी में चले বিয়ে করেছিল? হ্যাঁ लीव नहीं हुआ। हेलो और एक्टिव टॉप থাকে दुर्गा सर आए ले बेटा ठीक है आए কোথায় গেল? না বলবি? था हमारी ट्यूसडे को भाई मिल लेगा। हाँ नेक्स्ट वीक यार भाई इसको पापा को तुम जगह बोले ये तुम कहे नहीं इसको जेट में लेकर के जाता है हमारे हम जेट के इसको घर से लेके जाएंगे। भाई चाचा तो मुर्गा लेके बोले एक तो घर কি আরে মুদ্রা কথা কি ওই দিনকারে আমি ওই কারে জামাটা বন্ধ করে গেছি ও তো ভিডিও কল করেছে দেখছি ওই টাইটা তো আমি তো বলছি যে ওই মুড়িটা দিয়ে দে ভাই কচি মাংস ভাই হেভি বানালে হেভি টেস্ট হবে বলছে ছি এত মজা হয় তখন মানে পিঙ্ক কালারের মুড়ি पिंक कलर का येलो कलर का ना तुम लोग थोड़ा शांत रहो तो सुबह सुबह এই ঘাটটাই ওটা নম্বর ওটা পরিষ্কার। কোথা দিয়ে ফোন করেছিল? तेरे तक हुआ नहीं सर इसे मीटिंग ऑन है क्या सर? क्या हुआ? मॉर्निंग का फोन कर रहे हैं फिर ये भी फोन किया चला गया चला गया इसलिए बोलो तो आईडी सर हाइपर OFQC FBQ
FBQ वो FQC हेलो हाँ हाँ ज्वाइन तुम लोग ज्वाइन हो ना नेटवर्क का कुछ इशू हुआ था शायद पावर ऑफ हो गया था ज्वाइन कर रहे हैं वापस ना OFQC QC FBQ स्टार्टिंग से बोलो CPM OFQC FBQ FBQ अरे भैया अब कुछ मस्त नहीं है बाबा, इतना डिफिकल्ट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ना, मॉड्यूल 4 में सब कुछ पक्का फेल बाहर से आ करेगा। रहा है। भगवान जाने, नहीं चुप चुप बोलिए बाबा, पता नहीं क्या होगा क्योंकि सुन रहे हैं कि ये टेक्निकल और सब कुछ का वाइवा भी ऑनलाइन मतलब बाहर से आ रहा है कोई लेने, अब वो क्या पूछेगा क्या नहीं मतलब। अरे तो पूछेगा तो बाहर जो लोगों का कोई पढ़ाया काम है धंधा नहीं है क्या? अरे ये नहीं, अरे जो पढ़ाया एक एक जन जो पढ़ाया अंदर से नहीं पूछेगा, बाहर से थोड़ी ना पूछेगा यार। नहीं भाई, तब भी यार होता है। डीपली क्वेश्चन हाँ इंटरनल मतलब हार्ड, हाँ हार्ड कोर का क्वेश्चन करेगा ये लोग, क्या होगा गॉड। अभी तक जितना जन प्लेस हुआ है फिर देख रहे हैं वापस आ गया। अरे देख डर लग रहा है। देख हर चीज में कंपनी का गलती नहीं, देख नहीं सुन, हर चीज में कंपनी का गलती नहीं दे सकते खुद। देख हम लोग को तो सीखना ही है, मेहनत करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग मेहनत से भाग के तुरंत भाग भी आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। स्टार्टिंग का 1 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल मतलब क्या, बोला है 18 के और देगा 11 के, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ तो 18 के क्या है वो तो पता कर, सीटीसी है कि क्या है, इन हैंड थोड़ी बोलेगा 18। मान लो 24 के है, ऐसे ही 18 के मिल रहा है, उसमें से भी काट के 11 दे रहा था। हाँ वो कंपनी का इशू, वो हम लोग रेट कर सकते हैं कंप्लेन ये वो, लेकिन बहुत जन ऐसे भी छोड़ के आ जा रहा है पता है। Please mute yourself. This video is recording. ओके सर आ गए। चलो कन्वर्सेशन हुआ इन लोगों का। ये लिख लिए ना सब लोग? यस सर एकदम। हाँ सर सब सुन रहे नहीं हैं? सर नहीं लिखे सर। नहीं सुन नहीं रहे थे, देख रहे थे। ওই কোথা ভাই বেটা কোথা আবার জিজ্ঞেস করছে না सर यही चीज तो बोल रहे थे कि म्यूट योरसेल्फ, तो नहीं हाँ ল্যাপটপ খালি নেই ভাই মনে হয় খালি আছে ফাইল লাগলে এখানে পড়ে দেবো স্যার মার্কস হয়ে গেছে, ডান হয়ে গেছে, सब लिख लिए ना? सर अभी तो स्टार्ट किए हैं सर, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं देखिए सर अभी तो स्टार्ट किए हैं सर। अरे ना बहुत देर आगे लग रहा है, ये ऑफ हो गया है। স্যার শুধুমাত্র ঋতু মার্কসটা বলতে এত বড় বড় রাক্ষসের মধ্যে লোক বাইরে দেখে তো খামছি। আমি যদি একটা দিই না চুপ হয়ে গেছে। আমার বন্ধু কোথায়? আপাতত তোর মায়ের শরীর খারাপ, বলেছিল আজকে আসবে, পরের দিন যাবো। পরের দিন ক্লাস কিন্তু নেই, স্যাটারডে অফ।
थियरी हो गया ये रिकॉर्डिंग कैसा होगा, ब्रेक हो जाएगा क्या? नहीं रिकॉर्डिंग ऐसे चल रहा है। सुदीप्तर क्लासेस है तो साइड में और कुछ पाका नहीं सर। Every lab is occupied. उसकी पूरी तरह The one. लैब 6 लैब 5 361 को एक हुई थी मैंने मुश्किल कालू तो आगे दिन तो राजेश से क्लास नहीं होते सीसी में लैब 7 ने मुश्किल चलो लैब 5 है। थैंक यू सर। स्वरूप চেম্বারটা কি হয় এখানে কেউ বাইক নিয়ে এসছো 8941 নম্বরে আনোনি তো সুচরিতা বাইক চালায় ওটা क्यों बोल इसके पैर भी नहीं जाएगा इतना बड़ा तुझे स्टार्टिंग में हो गया डन। हेलो यस सर हो गया सर कंटिन्यू। ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट से लेके 5th पॉइंट तक किसी का 5th नहीं है, ये 8 पॉइंट तक होगा। ये नंबर गलत लिखा हुआ है तो ये 8 पॉइंट तक किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया सबको क्या है इसका मतलब? It is designed to optimize the cost by moving data in a best cost-effective access time. It works by storing data in two tables. In any data list which is in सर नंबर 5 क्या है? सर 3 नंबर ना सर बता दीजिए सर। नंबर 3 Yes, sir. any data is accessed which is in IA tiers. आए स्टैंडर्ड अगर मैं यूज करता हूँ, मतलब आए टायर यूज करता हूँ, इस टायर के अंदर मैं डेटा स्टोर करने के लिए इस टायर को यूज करता हूँ, एक्सेस करने के लिए। अगर मैं इस टायर से डेटा एक्सेस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डेटा तुम्हारा मूव कर जाएगा कहाँ पे? स्टैंडर्ड में। Yes. ठीक है और कुछ Based for uncertain data. पॉइंट नंबर सर अनसर्टेन डेटा। अनसर्टेन डेटा मतलब जो डेटा तुम्हारा काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं या फिर वो डेटा सर्टेन नहीं है, मतलब है चलो पड़ा है वो कभी कदर काम में आ बहुत सकता है। दिनों से उसको मतलब देख ही नहीं रहे। हाँ, बहुत रेयरली यूज करते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि इन फ्यूचर काम में आए। जैसे अभी आप बोलोगे कि मेरा पॉलिसी फाइल, एग्जाम पॉलिसी फाइल, वो मेरे को डेली जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कोई बैच अगर कंप्लेंट करे कि नहीं मेरे एग्जाम सर ये गलत एग्जाम हो रहा है, प्रोसेस सही नहीं है, जैसे कि संजना बोल रही है, तो वो एग्जाम पॉलिसी दिखाना पड़ेगा उनको, है कि नहीं? वो एग्जाम पॉलिसी को कब लगेगा? जब कोई रिक्वायरमेंट आएगा, तो ऐसा सिचुएशन आएगा कि दिखाना पड़ेगा, तो उस डेटा को मैं एक्सेस करूँ। लेकिन वो डेटा तो रहना चाहिए मेरे पास, वो फाइल तो रहना चाहिए, इस फाइल को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? कम पैसे में कम खर्चा में S3 एंट्री एंड टाइम। ठीक है, क्लियर फॉर एवरीवन? नेक्स्ट सर पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 नहीं है, 8 तक ही है। कौन सा बोल रहे हो? नहीं सर पॉइंट नंबर 8 डिजाइनिंग फ्रॉम 99.93 9
ये तो परसेंट अवेलेबिलिटी पर ईयर। सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। 99.9% अवेलेबल रहेगा पूरा साल के लिए, पूरा साल में। कॉन्सेप्ट ही तो नहीं समझे सर। तो ऐसे डिजाइन किया है ना, तो आप कोई भी डेटा रख रहे हैं तो 99.9% वो अवेलेबल ही रहेगा पर ईयर, ये ना सर। ओके। डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए ना, डेटा आप रख दिए, स्टोर कर दिए, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। एबिलिटी मतलब होता है क्या? एक्सेसिबिलिटी। आप एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो कितना परसेंट दिखा रहा है ये एक्सेसिबिलिटी मेरे को? 99.9%। समझ में आया? Amazon का चार्जेस ना दो तरह से होता है डेटा स्टोरेज का। डेटा स्टोरेज का चार्ज वो लेता है अलग से। डेटा आप जितने दिन के लिए स्टोर कर रहे हो उसका चार्जेस तो लगेगा ही, काफी कम चार्ज लगता है उसका। लेकिन डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा ट्रांजिट हो रहा है, तो उसका चार्ज अलग से लगता है। मतलब ट्रांजिट का चार्ज अलग और रखने का चार्ज अलग। हाँ 11:30 থেকে ওয়ার্কশপ আছে। জানি না 11:30 দিয়ে কি করে হলো আমি বুঝতে পারছি না। 2টো থেকে 4টে হয় ওয়ার্কশপ। এবারে কার সাথে কি কমিউনিকেট করেছে জানি না। আমি রাজা সেটা হয়তো জিজ্ঞাসা জানে, করলাম যে রাজাকে সার্ভিস থেকে বলেছে বলেছো। না। ঠিক আছে স্যার, আমরা ব্ল্যাক ফাইভে স্টার্ট করে দিচ্ছি। সব কিছু সব জানি এই করে আমি ব্যাচ বন্ধ করে দিতে হবে। Amazon wants IP। Amazon वन जोन आई, आई मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, सेम यहाँ पे भी है।
डन हो गया। ओके डन। अच्छा इसमें भी 9 पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट आप लोग पढ़ लो, एक बार समझ लो, अगर कहीं पे भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदर वे वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्लास। सर इसमें जो 1 नंबर का पॉइंट है सर, डिजाइन सर 5। अच्छा ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट में डाउट है, ये है 1 नंबर पॉइंट, सेम पॉइंट है 1 नंबर का प्रीवियस वाला का। ये अगर आप देखो Amazon S3 i का भी पॉइंट सेम ही है, और Amazon S3 1 जोन i का भी पॉइंट एक ही सेम ही है। सो इनफ्रीक्वेंट डेटा के लिए डेटा आप ज़्यादा एक्सेस नहीं करते हो, उस डेटा को यहाँ पे रखना है आपको, लेकिन जब एक्सेस करोगे तो काफ़ी फर्स्ट एक्सेस आपको रैपिड एक्सेस। हाँ, और कौन सा पॉइंट? सर 5 और 9 पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। अच्छा, नंबर 3 में आते हैं, पहले नंबर 3 का भी डाउट किसी का है। सो नंबर 3 पॉइंट में साफ साफ ये बताया जा रहा है कि आइडियल दिस स्टोरेज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, दोज ऑर्गेनाइजेशंस, दोज कंपनीज जहाँ पे कंपनी को कम पैसा खर्चा करना है डेटा स्टोर। हाँ, वो S3 IASIS कॉस्ट 20% लोअर दे रहा है, और लिखा ही हुआ है 6 नंबर पर। उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, उस कंपनीज के लिए है, उसके लिए पैसा जो है बचाना ही मेन मकसद है डेटा स्टोरेज। सर पैसा तो बचाना मेन मकसद है, बस इसका जो अवेलेबिलिटी है वो 99.5% है, उसकी तुलना में उसका तो 99.99 है, इसलिए तो इसमें खर्चा कम है। क्यों इसमें ऐसा हो रहा है? बिकॉज ये आपका डेटा का कॉपी नहीं, ये कहाँ गया, हाँ, बिकॉज ये डेटा को स्टोर सिर्फ एक ही एवरेडी जोन में रख रहा है, इसका कोई बैकअप सिस्टम वो क्रिएट नहीं कर रहा है, तो एवरेडी जोन अगर फेल हो गया तो डेटा भी आपका चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कॉस्टिंग कम है यहाँ पे। ये बेस्ट है, ये इस तरह का स्टोरेज बेस्ट है उन लोगों के लिए जो डेटा का बैकअप रखता है। मतलब मैं डेटा एक जगह पे रखा हूँ, उसका बैकअप मैं यहाँ पे रखूँ, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। मेरा डेटा तो है, अगर बैकअप डिलीट भी हो गया तो डेटा तो है, डेटा डिलीट हो गया तो बैकअप तो है, उसका बैकअप का बैकअप मैं दूसरी जगह रख सकता हूँ, लाइक दैट। हाँ, और क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे क्या? सर 5 और 9 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 5 में बोल रहे थे रिक्रिएट इजीली रिक्रिएट, और 9 में बोल रहे डेटा विल बी लॉस्ट। इसका मतलब क्या है? বেস্ট ফর ইজিলি রিক্রিয়েটেবল ডেটা, বেস্ট ফর এটা এই স্টোরেজটা তাদের জন্য বেস্ট যে ডেটাগুলো আমরা তৈরি করছি আর একটা ব্যাকআপ সিস্টেম রাখার চেষ্টা করছি কোথাও, রিক্রিয়েটেবল ডেটা। and last point is different point, it is simple thing is saying that if zone availability zone is fail तो data will be lost, because यहाँ पे data store कहाँ पे हो रहा है, एक ही availability zone में हो रहा है, तो नंबर 2 और नंबर 9 को तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो একটা AZ यूज करें। All are clear for everyone? Yes. अच्छा, next one is glacier, Amazon S3 ग्लेशियर। अभी पहले ग्लेशियर डिफरेंट था, अभी Amazon S3 का पार्ट कर दिया है ग्लेशियर। सो ग्लेशियर इज द सिक्योर एंड ड्यूरेबल लो कॉस्ट स्टोरेज, सबसे कम पैसा खर्चा। सबसे लो कॉस्ट लगता है बिकॉज डेटा आर्काइव के लिए यूज करते हैं इसको, हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे डेटा काफी दिन के लिए हमको रखना होता है, ज़्यादा यूज नहीं है, मतलब ज़्यादा एक्सेस नहीं है डेटा का, उस तरह डेटा हम लोग ग्लेशियर में रखते हैं। सर जीप फाइल, जीप फाइल काफी स्लो एक्सेस ही प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें खर्चा आपका कम है।
ये काफ़ी ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट डेटा के लिए है, मतलब काफ़ी साल में हो सकता है एक बार मैं एक्सेस करूँ, मे बी इस तरह का डेटा यहाँ पे हम लोग रखते हैं ग्लेशियर में। एक्सेस जब करोगे तो डेटा एक्सेस आपको काफ़ी स्लो मिलेगा। सर यहाँ पे तो ओल्ड डेटा रख सकते हैं तो क्या सर? ओल्ड डेटा के लिए तो इसको बनाया गया। हाँ सर, हाँ सर। डन। जी सर। नहीं और भी नीचे में है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 4 के बाद और नीचे में सर नंबर 4 सर। हाँ नंबर हाँ हाँ अच्छा this one. If we need faster retrieval we need to pay more. अच्छा नंबर 5 यहाँ से भी आप सर नंबर 4 लिखे ही है सर। लिख लो। स्नोबॉल भी S3 का पार्ट कर दिया है। उस स्नोबॉल तो सर वो हार्ड आता है ना बाय कुरियर, बहुत ह्यूज अमाउंट का डेटा। ये कुरियर नहीं भेजता, वो लोग बड़ा बड़ा गाड़ी भेजता है, ट्रक। हाँ ठीक है। वो पे यहाँ पे सर बहुत आदमी ह्यूज अमाउंट डेटा। ऊपर का बाकी रह गया। ऊपर का हो गया।
শোনো কে নিচ্ছে তুমি ফাইবার নিয়ে ঘোরাঘুরি করছো কেন কি করবে দেখাচ্ছিলাম কোথায় আগুন লাগাবে দেখাচ্ছিলাম স্যার এটা ওয়ার্কিং আছে এটা কি করে চেক করলে লেখা আছে ওয়ার্কিং ও বাবা তাই জন্য চেক করবো কি আবার তুমি গ্লেসিয়ারের ডিভাইস অ্যাক্সেস করছো ওরা এটা 5 বছর আগে লেখা ছিল আর কি শুনুন হ্যাঁ। ও এখন বলছে যেরকম ভাবে সিরিয়াল নাম্বার হিসেবে পাঠিয়েছিল ওরকম সিরিয়াল নাম্বার হিসেবে ভাইবার জন্য পাঠাতে এরকম ভাবে কি করে কমপ্লিট হবে জানি কারণ এখন মানে প্র্যাকটিক্যাল শেষ হয়নি ওদের 11টার মধ্যেই ভাইভাতে বসাতে হবে কারণ ওদের ট্রেনার্স নেই এরা তো প্র্যাকটিক্যাল করছে না প্র্যাকটিক্যাল করে আমরা এক এক করে আমরা পাঠাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল শেষ হতে ভাইভা দিয়ে আসবে সিরিয়াল নাম্বার করে করলে কি করে হবে সেটা বলছো না কেন একটু আসুন না বলেই তো যাচ্ছি আমি কন্টিনিউয়াসলি কে মানছি এসেছিলেন? তো না কে সুমিতা। শিবালিকে বলো কি আগে বলতে হতো না সকালবেলা কিছু এসব বলে লাভ নেই এখন আগে বলতে হতো পরে বলতে। সিরিয়ালি কি করে হবে প্র্যাকটিক্যাল যাদের হচ্ছে তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি এক একবার এক जो একটা ये নাটক मैडम করে যাচ্ছে छुट्टी मैडम जाচ্ছে ये कैसे होगा मैडम ये कैसे এইভাবে ইরিটেট হয়ে যাচ্ছে। क्या हो गया लास्ट वाला पॉइंट यस सर सारा पॉइंट हो गया डन लिख लिए बोलो यहाँ पे किसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 Data will be resilient रेजिलेंट of intent to ability to build. हाँ ये कौन बोल पाएगा रेजिलेंट मतलब क्या होता है क्या रेजिलेंट मतलब क्या होता है नहीं मालूम किसी को नहीं मालूम रेजिलेंट मतलब जब सर टिकाऊ अगर पूरा जो एबिलिटीज है ना वो फेल भी हो जाएगा ना तो भी डेटा वो मिल जाएगा। डेटा टिकाऊ है मतलब वो मिल जाएगा ठीक है डेटा विल बी रेजिलिएंट आफ्टर फेलियर ऑफ एबिलिटी जोन पूरा एबिलिटी जोन फेल भी हो जाए पूरा डेटा सेंटर बंद भी हो जाए पावर फेलियर हो जाए भूकंप आ जाए इस एबिलिटी जोन में फिर भी आपका डेटा सर ये भी डेटा कॉपी करके रखते हैं क्या ठीक है और कुछ पॉइंट सर यहाँ इंटायर एबिलिटी जोन बोल दिया मतलब एक रीजन में मानते 2-3 जोन है एबिलिटी जोन है सो वो पूरा रीजन का जो जोन है पूरा फेलियर हो गया तो क्या वो अलग रीजन में स्टोर होगा नहीं एंटायर एबिलिटी जोन मतलब वो एबिलिटी जोन पूरा एबिलिटी जोन हमको लगा जो रीजन का पूरा एंटायर एबिलिटी जोन नहीं तो फिर तो रीजन ही फेल हो गया वही तो सर वो तो रीजन रीजन लिखता ना वहाँ पे एक एबिलिटी जोन पूरा फेल हो गया दूसरा एबिलिटी जोन में डेटा आपका है अच्छा और कोई पॉइंट है जो आगे तक 8 এটা অনেকবার হয়েছে সে ডেটা যখন ট্রান্সফার হবে থ্রু দ্য নেটওয়ার্ক ইট উইল বি এনক্রিপ্ট দ্য ডেটা ডেটা এনক্রিপ্ট হয়ে যাবে ডেটাটা প্লেন টেক্সট থেকে সিফার টেক্সটে চলে যাবে প্লেন টেক্সট মানে হচ্ছে রিডেবল ফরম্যাট আর সিফার টেক্সট মানে হচ্ছে আনরিডেবল ফরম্যাট एबीसी ऐसे তার জন্য রেসপন্সিবল কে এসএসএল এসএসএল এটা এই কাজটা এসএসএল করছে और कुछ क्वेश्चन है किसी का no next one is the last one that is Amazon S3 Glacier Deep Archive Deep Archive अब आते हैं ग्लेशियर S3 ग्लेशियर से भी चीपेस्ट कौन सा है
डीप है, सबसे सस्ता वाला स्टोरेज। ड्यूरेबिलिटी और एबिलिटी इसका भी सेम। बट इसका ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर का चार्जेस ज़्यादा है, स्टोरेज का चार्जेस सबसे लो है, लेकिन डेटा ट्रांसफर का तो यहाँ पे चार्जेस आपका ज़्यादा। এরা যত একটু ল্যাব থ্রিতে যাও তো কি একটু বলছে শুনে আসো তো কি বলবো না না কি একটা শিবালিকে কিছু বলছে শুনে আসো তো কি বলছে। নখানা পয়েন্ট আছে ডান লিখে নিয়েছো? কি নাম্বার চলছে লিখতে লিখতে তো টাইম শেষ হয়ে গেল আমার কাছে। কোনো প্র্যাকটিক্যালই হলো, আমি ভাবছি প্র্যাকটিক্যাল করে নেবো আজকে সবগুলো S3 বাকেট আজকে শেষ করে দেবো। सर आप तो पीडीएफ नहीं देते, सर बोलते हाथ से पीडीएफ दिया हुआ है सब। हाथ से लिखे हुए तब ना मतलब हाथ ठीक चलेगा, नहीं तो हाथ में पेन में जंग लग जाएगा। चाकू का इस्तेमाल जितना करोगे चाकू का धार बढ़ेगा, ठीक ही नहीं बढ़ा। चाकू रख दोगे तो उसमें जंग लग जाएगा। देखो हैंड राइटिंग ठीक करो, नीचे पढ़ते हो ना पढ़े हैं एमटीएम के लोग रात ठीक है তানিয়া তো এসেছিল বলছিল যে এই ওটা হচ্ছে এটা বলছে সেটা বলছে নেই। আচ্ছা আমি কালকে আপনি রূপক স্যারের ব্যাচ থেকে একটা ছেলেকে আমার ব্যাচে ব্যাচ ট্রান্সফার দিয়েছেন কি কাকে? কে বিট্টু কুমার না কি নাম? হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো তার তো কোর্সই আলাদা। কি কোর্স? আমারটা তো এমসিসি উইথ এআই, সিলেবাস আলাদা, তারটা এমসিসি সিলেবাস আলাদা, কি করে হবে? কোর্স করাতে হবে না না, কোর্স স্যালারি বেড়ে যাবে, মানে ফিস বেড়ে যাবে। ওকে বলো দাও ফিস বেড়ে যাবে। সে আসেনি, আমাকে স্যার বললো তাই বলতে এলাম আপনাকে। 385 এর ওরে তো যে ব্যাচ আসবে সেটা তো এআই ব্যাচ আসবে, তো কোর্সিং করাতেই হবে। গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং। 385 অবধি তো নরমাল ছিল। হ্যাঁ কালকেরটা তোলা হয়নি, কালকেরটা আজকে বিকালে হবে। এটা খাতা, এইসব নাটক করোই না তোমরা এই বয়সে এসে। ফেয়ার খাতা, রাফ খাতা, প্র্যাকটিক্যাল খাতা, 4টে খাতা নিয়ে আসছে জানেন, উইন্ডোজ 10 করতে। একটা নোংরা করবে, একটা পরিষ্কার করে লিখবে, একটা মাইন্ড ম্যাপের খাতা, একটা প্র্যাকটিক্যালের খাতা। মানে আপনি যদি পড়াতে পড়াতে একটা প্র্যাকটিক্যাল দেখলে একটা খাতা বন্ধ হয়ে খাতা করে ফেলছে। ভালো তো সাংঘাতিক নাটক চলে। কোথায় নেওয়া যাবে সেটা বলে বলবো স্যার বজরও আটু কি ফস কাটিয়ে দেবো, কিছুই পারবে না। 10টা খাতায় লিখছে, বাইরে ভাবি কি পড়ছে কি পড়ছে। सर आप तो बोले थे 2 कॉपी बनाने के लिए ना सर? तुम हम लोग जो कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। आया सर बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा चमकाते हैं सर। ओके ओके सर। उनका नाम क्या है उनका? नाम में ही जादू है, समझना। प्रजा पे राज करते हैं। हम लोग प्रजा है। पिंटू बाबू কি খবর? এখানে কতদিন চলবে? হ্যাঁ এক্সামে যাও, এক্সামে ভালো একটু ওখানে শুধু থাকবে, মাথা নাড়াতে দেবে না। এই সার্কিউলার উধর দেখো, বাস এইটুকু, আর কিছু করতে হবে। গার্ড দিতে হবে এক্সামে, গার্ড। डन हो गया, वेरी गुड। अब बोलो किसी का कहीं पे डाउट्स है, क्वेश्चन है,
सो इसको कब यूज़ करते हैं? डीप आर्काइव जब बोल रहा है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, लंबा समय के लिए डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। आज डेटा स्टोर कर रहे हैं, 10 साल बाद लगेगा, 50 साल बाद लगेगा डेटा। आइडियल फॉर मैग्नेटिक टेप ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, मतलब ये बोलना चाहता है क्या कि इस तरह का डीप आर्काइव डेटा जैसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, इस तरह से हम लोग टेप ड्राइव में भी रख सकते हैं। इट्स सिमिलर लाइक ए टेप ड्राइव। पहले डेटा बैकअप करते थे टेप ड्राइव में, फिजिकल सर्वर जब होता था तो वहाँ पे डेटा बैकअप होता था। तो डेटा बैकअप के लिए सबसे बेस्ट था टेप ड्राइव। टेप ड्राइव देखे हो क्या? दिखाते हैं। टेप ड्राइव देखने में ऐसा होता था। रिबन टाइप का सब रहता है कुछ। टेप ड्राइव ये देखिए सर, ऐसा होता था। रिबन टाइप का না তুমি নিয়ে নাও কোরিয়ান। सो टेप ड्राइव के तरह ही होता है S3 ग्लेशियर बोले तो टेप ड्राइव नहीं होता है। टेप ड्राइव जैसा प्रीवियस में टेप ड्राइव का जो कंसेप्ट था, यहाँ पे वो S3 डीप आर्काइव हो गया कंसेप्ट। टेक्नोलॉजी डिफरेंट, इट इज नॉट टेप ड्राइव। क्लियर? सो ऑल्टरनेटिव्स पे आप टेप ड्राइव बोल सकते हो, इसका ऑल्टरनेटिव। लैब चाहिए वर्कशॉपेর জন্য। देखो कौन लैब আছে? স্যার একটা ল্যাব খালি ছিল তো পাইবো তো ভাইবা হচ্ছে স্যার। সেই তো স্যার ল্যাব খালি ছিল না তো, সুদীপ্তারই ব্যাচ ছিল 5। দেখো কি 361 না না একটা ল্যাব খালি ছিল। হ্যাঁ খালি ছিল না। আচ্ছা এক্সামের জন্য, আচ্ছা এক্সামের জন্য ওটাও ইয়ে না তো কোনই ল্যাব খালি নেই। মানে ল্যাব 5ও দিতে পারবো না। ল্যাব 5 এ ছিল সুদীপ্তার ব্যাচ। হ্যাঁ 361 ওটা রাজেশ স্যার নেবেন, আর রাজেশ স্যারের ব্যাচটা অনুসুয়া ম্যাম নেবেন। হ্যাঁ তো ল্যাব 5 এখনো আছে, দেখো ব্যাচ শিডিউলে 5এও ক্লাস আছে, সেটাই বলছি কোন ল্যাবে এক্সাম খালি তো আমাকে 3 এর কথাটা ভুলে গেছিলাম। আনতে হবে অন্য জায়গায়। তো বসতে দিচ্ছে না এক্সাম, তো এক্সাম দেওয়ার জন্য ওই জন্য ল্যাব নিতে হয়েছে। আরে যাবো এক্সাম যদি সরকার রুমে করি তাও কোনো ল্যাব খালি নেই, মানে অলরেডি তো 3টা এনগেজ আর বাকি 6টা ল্যাবেই ক্লাস আছে। দুই ওয়ার্কশপের জন্য বসিয়ে দেওয়া যায়, তারপরে আমাদেরই ল্যাব অ্যাডজাস্ট করতে হবে, সেটা তো কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ দুটো ব্যাচকে একসাথে বসিয়ে দিতে হবে। দুটো ব্যাচকে একসাথে, দুটো ওয়ার্কশপ দুটো না 4টে ব্যাচকে একসাথে বসিয়ে দিতে হবে। তাই করতে হবে। এক্সাম আছে না, ও তো নিজের জায়গা ছাড়বে না। এটা একটা এক্সামটা আমি করে দেবো না। বললাম আমি বসিয়ে দিই, আমি তো এখন এদিকে চলে যাবো, আমি তো 2 ঘন্টা ছেড়ে দাও, তাহলে ল্যাব থেকে তুলে এখানে আমি তো বলে দিলাম তো, যখন ছেড়ে দিলাম। ল্যাব 5 তো আপনি বলছেন তাও ক্লাস আছে না, তো দুটো ব্যাচ বসিয়ে দেবো না ওখানে। ল্যাব থাকলে কি হবে, আমি দুটো ব্যাচকে একসাথে বসাতে পারবো। সে একই পড়াশোনা করবে, দুটো ব্যাচ বসিয়ে দিন। করতে হবে পড়াশোনা করতে তাহলে কেউ আসে না। প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে বসাবেন না একসাথে, থিওরি ল্যাবে একসাথে বসাবেন। হ্যাঁ আপাতত তুমি এক্সামটাকে শিফট করাও না, তারপরে কোথায় কি বসাবে। আমার রুমে করিয়ে দেবো, আমি তো বললাম 11:30 থেকে ওয়ার্কশপ। দুটো শিফট তো স্যার এখন 11:30 তে কোনোদিনও টাইম ল্যাব পাবে না। 11:30 তে 8খানা ব্যাচ আছে, মানে পিক টাইম, সেটা তো 8খানা ব্যাচ আমাকে প্রতিদিন ব্যাচ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। একটা ল্যাব থাকে খালি ওয়ার্কশপের জন্যই, যেটা খালি থাকে, আর 4টে থেকে অনেক ল্যাব আছে। দুটো রেখেছে 11:30 থেকে 1:30, 2 থেকে 4টে। 11:30 থেকে রাখার আগে তো দেখতে হবে ব্যাচ শিডিউলটা একবার না, সেটা তো বুঝতে হবে একটু। আমাকে প্রতিদিন ব্যাচ বন্ধ করতে হবে একটা করে। আমি কি বলবো? হ্যাঁ কি বলবো, এখন বলতে আসছো যখন তো আমার বলতে হবে, উত্তর দিতে হবে। ঠিক আছে, তুই আগে ওইটা শিফট করে আমার রুমে করা। কি হলো? ফাইন স্যার। এগুলো কি টিক মেরেছে তুমি? আন্দাজি মেরে দিয়েছি টিক। আর কি হচ্ছে? টিক মারবে না, শুধু না ব্যাচ নাম্বার লিখবে, ব্যাচ নাম্বার লেখার দরকার নেই, ফ্যাকাল্টি লিখবে। ব্যাচ নাম্বারটাও ভুল লিখেছো। 356 আছে, 350 সেটা অ্যাড লিখেছো।
স্যার ছিল স্যার 11:30 থেকে ল্যাব ফ্রিতে হচ্ছে ম্যাডাম ল্যাব চলে যাবো স্যার হ্যাঁ और कुछ क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे क्लियर है सबके लिए हाँ बाकी जो EFS है या EBS है इट्स नॉट पार्ट ऑफ S3 ये S3 का पार्ट नहीं है ये S3 का पार्ट नहीं S3 का बाहर आ गया बट इट्स आल्सो यूज फॉर स्टोरेज डेटा स्टोरेज इसे S3 को डेटा स्टोरेज के यूज करते हैं EBS EFS को भी डेटा स्टोरेज के यूज करते हैं लेकिन वो डिफरेंट टेक्निक से काम करता है EBS में हम OS स्टोरेज कर सकते हो स्लाइड रख सकते हैं बट उसमें नहीं तो अभी आप लोग कॉपी बंद कर दो अपना बंद कर दिए क्लास तो खत्म ही हो गया ना कॉपी बंद कर दो और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या किसी का कोई क्वेश्चन है एनी क्वेश्चंस ओके तो चलो मेरा एक क्वेश्चन है बंद करने के लिए खाता है क्लासेस so what are the classes in S3 bucket what are the different types of classes how many classes are there standard एक मिनट glacier तो देख के बोल रहा है ना देख के बोल रहा है ये अजय सर आप ही तो बोले बोलो हाँ तो देख के थोड़ी ना बोल रहा है ओके ऐसा बोल अच्छा ऐसा बोलना पड़ेगा मीटिंग ही बंद कर दी हाँ बोलो Amazon S3 Glacier Amazon S3 Glacier ग्लेशियर डीप आर्काइव S3 Glacier डीप आर्काइव दो हुआ स्टैंडर्ड पुरोटा बोलते हो S3 स्टैंडर्ड तीन हुआ बोलो छुट्टी सर इनफ्रीक्वेंट नहीं एक बोल सकते हो ना एक आदमी एक ही बोल सकते आई Amazon S3 आए बोले কিছু নেই না ये ছিল ये অনেকগুলো ছিল একটা ছিল दो है স্যার আরেক মিনিট স্টল ক্লোজ করুন বলো বলো তুই বলো आई S3 1 जो आई चार हुआ चलो आप कॉपी देख के बोलो ये और ये बोल पाया हाँ वो ये नहीं बोल पाया वो कोने वाला नहीं बोल पाया स्टैंडर्ड आई मिस हुआ है ग्लेशियर दोनों बोला है मैंने डी पाते इंटेलिजेंट टायरिंग मिस ये दो मिस किए स्टैंडर्ड आई मिस हुआ है वो सिर्फ S3 आई बोला है S3 स्टैंडर्ड आई बोलना चाहिए S3 स्टैंडर्ड आई है ना শুধু আই লেখা লিখেছো सर S3 কমান্ডটাই আছে S3 আই হ্যাঁ একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে একটা স্ট্যান্ডার্ড সবার ফার্স্টেই তো স্ট্যান্ডার্ড ছিল नॉर्मल सर ये स्टैंडर्ड ग्लेशियर দু ग्लेशियर নম্বরটা Amazon S3 আই একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা স্ট্যান্ডার্ড এটা ঠিক বলেছো তাহলে একটা মিস হয়েছে আমাদের যেটা টায়ারিংটা ইন্টেলিজেন্ট আইটি ওকে নেক্সট ডে উই উইল ডু দ্য প্র্যাকটিক্যাল যতগুলো আমরা করেছি S3 তে সব প্র্যাকটিক্যালস গুলো করব প্র্যাকটিক্যালস এর মধ্যে যেমন আমাদের আছে how we can create a different classes how we can create a life cycle how we can create a versioning how we can create a replica of data how we can create a static website ठीक है तो ये लगभग 6 प्रैक्टिकल करेंगे हेलो सोमोजीत
हाँ वही